Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। तो आज हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद है और 70वां जो है अध्याय है। श्लोक संख्या है 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार से है। केचित् विकल्प वसना आहुर आत्मानम् आत्मनः दैवम् अन्ये अपरे कर्मा स्वभावम् अपरे प्रभुम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Some of the philosophers who deny all sorts of duality declare that one's own self is responsible for his personal happiness and distress. Others say that superhuman powers are responsible, while yet others say that activity is responsible, and the gross materialists maintain that nature is the ultimate cause. Purport: as referred to above, philosophers like Gemini and his followers established the fruitive activity is the root cause of all distress and happiness, and that even if there is a superior authority, some superhuman, powerful god or gods, he or they are also under the influence of fruitive activities because they reward results according to one's action. They say that action is not independent because action is performed by some performer. Therefore, the performer himself is the cause of his own happiness or distress. In the Bhagavad Gita 6.5, also it is confirmed that by one's mind, freed from material affection, one can deliver himself from the suffering of material pangs. So one should not entangle oneself in the matter by mind's material affection. Thus, one's own mind is one's friend or enemy in one's material happiness or distress. Atheistic, materialistic, Sankhyayites conclude that material nature is a cause of all causes. According to them, combination of material elements are the causes of material happiness and distress, and disintegration of matter is the cause of freedom from all material pangs. Gautama and Kanada find that atomic combination is the cause of everything, and impersonalists like Ashtavakra discover that the spiritual effulgence of Brahman is cause of all causes. But in Bhagavad Gita, the Lord himself declares that he is the source of impersonal Brahman, and therefore he is the personality of Godhead, is the ultimate cause of all causes. It is also confirmed in Brahma Samhita and that Lord Krishna is the ultimate cause of all causes. Yeah. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बुजम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय स्वामी नमो आचार्यपादाय निकायकपादाय गौरभक्तवृंदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषण्यवादि पार्षदेशिका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत राधव शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक के अंदर अलग अलग तत्व ज्ञानी जितने हैं उनके बारे में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो वहां मेरी आवाज आ रही है प्रभु? इज क्लियर?
यस, वेरी मच प्रभु जी। तो यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं, अलग अलग तत्व ज्ञानी, उनकी धारणा क्या है, उनकी सोच क्या है, और उन सभी के ऊपर सुपरसीड जिसको कहते हैं, इससे सबसे उच्च स्तर में क्या है, वो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो जैमिनी है वो क्या कहते हैं। जैमिनी की फिलोसफी यहाँ पर तुरंत रद्द कर दी गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो वो कैसे, तो भगवत गीता के अंदर हम श्लोक सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जैमिनी की जो फिलॉसफी है उसको तुरंत उसी समय उसका जो खंडन किया गया है, और श्रील प्रभुपाद रेफरेंस देते हैं भगवत गीता का। और भगवत गीता के अंदर जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करो, जो भी आपकी धर्म है उनको सबको त्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ। तो भगवान सुपरसीड कर जाते हैं जितनी भी जो ये फिलोसफी से उनको बता देते हैं कि आप मेरी शरण में आओ, और जब आप मेरी शरण में आओगे तो अहम तो हम सर्व पापे भी, आपके जितने भी पाप है उन सबके ऊपर उनका सबका खंडन हो जाएगा, उनका सबका नाश हो जाएगा। और अहम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनके जो रिएक्शंस हैं, जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं, जो भी आपने कार्य किए हैं, उसके फलस्वरूप जो आपको मिलना चाहिए, जो कर्म का जो रिएक्शन है, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर और फिर भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक का जो है भगवान श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट के अंदर रेफरेंस देते हैं। और जैसे हमने भगवत गीता के क्लासेस में सुना हुआ है कि जो मन है वो मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका मित्र है। तो इट इज कंफर्म दैट वंस माइंड फ्रीड फ्रॉम मटेरियल अफेक्शन, अगर आपका मन है वो उन भौतिक वस्तुओं से छूट गया है, वो उसने भौतिक वस्तुओं से जो उसकी आसक्ति है उसको छोड़ दिया है, तो वही मन आपको कहाँ ले जाएगा, वो आपको इस भौतिक जगत के अंदर जितने भी कष्ट हैं उन सभी कष्टों से आपको निवृत्त कर देगा। तो सबसे बड़ा कष्ट भौतिक जगत के अंदर क्या है, तो सबसे बड़ा कष्ट जो भौतिक जगत के अंदर मृत्यु का। तो यहाँ तक कि अगर मन को आपने भौतिक वस्तुओं से अलग कर दिया है तो मन आपको इस सबसे बड़े दुख यानी मृत्यु, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जन्म होता है, तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, तो इन चारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा अगर आपने आपके मन को जो है भौतिक वस्तुओं की आसक्ति से दूर कर दिया। तो ये पहली बात होती है। द सेकंड थिंग वही बताते हैं, उसी जो श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि अगर उस मन को, अगर आपने भौतिक वस्तुओं के अंदर आसक्ति को बढ़ाया तो वो मन आपका शत्रु बन जाता है। तो शत्रु कैसे बन जाता है कि जब आप भौतिक वस्तुओं के पीछे लगे रहते हो, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति से आप जुड़े रहते हो, तो उसका परिणाम, जो उसका फल मिलता है आपको, वो आपको फिर से जन्म लेने के लिए मतलब आपको प्रतिबद्ध कर देता है, यानी आपको बांध देता है और आप फिर जन्म लेते हो। फिर उसी जन्म के बाद में जो है मृत्यु है, जरा व्याधि, उसके वो पूरे चक्कर में चलते हो। और जब तक आप इस मन को कंट्रोल करके मन को जो है भौतिक जो इच्छाएं हैं उनसे दूर नहीं करते, तब तक आप जो है इस जो भवसागर के अंदर, कौन सा भवसागर, यानी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भवसागर है, इसमें आप फंसे रहोगे। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि जो मन है वो आपका मित्र भी है और मन आपका शत्रु भी है। आप कैसे उसको मतलब एक्सेप्ट करते हो, आप उसको कैसे करते हो, आइदर यू आर पेसिमिस्टिक और यू आर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक है तो आप क्या कहोगे, अरे आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है, और पेसिमिस्टिक है तो आप क्या बोलोगे, आधा ग्लास खाली है। तो कहने का मतलब बात वही है, मगर आप आपके मन को जो है उस तरह से बदलाव करो, उसकी जो आसक्तियां हैं उसको, जो भौतिक आसक्तियां हैं उससे दूर करो और आध्यात्मिक आसक्तियों के साथ में उसको जोड़ो। तो आध्यात्मिक आसक्तियां कौन सी हो सकती हैं, तो आध्यात्मिक मतलब भक्तों के साथ में जुड़ो, भक्तों के साथ के अंदर जो उनके साथ में बैठ के भागवतम की चर्चा करो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करो, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में बात करो।
और वो सब आपको कहाँ मिलता है? तो वो आपको श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलता है। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में अलग-अलग बातें आपको भागवतम के माध्यम से पता चलती है। इस तरह से आपकी जो भौतिक इच्छाएँ हैं, वो भौतिक इच्छाएँ कम हो जाती हैं और आपकी आध्यात्मिक इच्छाएँ वो ज़्यादा बढ़ती जाती है ध्यानपूर्वक सुनने से। तो मन वही है, वही मन आपका मित्र भी है, वही मन आपका शत्रु भी है। तो फिर 634 के अंदर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये जो है अध्याय है 634 अध्याय छठा अध्याय भगवत गीता का। तो उसके अंदर 634 के अंदर फिर प्रश्न उठता है, अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भाई जो ये मन है, वो मन बड़ा चंचल है। तो और वो हमेशा क्या कहते हैं कि इसके अंदर मन की जो 4 क्वालिटीज़ हैं उसको दर्शाते हैं। तो बोलते हैं एक तो पहला चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। अभी इसमें 4 इन्होंने बातें बताई हैं। चंचलम यानी फ्लिकरिंग, कभी भी एक जगह पे स्थायी नहीं रहता मन, कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़। 1 मिनट में यहाँ दुबई में बैठा है, दूसरे मिनट में वो इंडिया में बैठा है, तीसरे मिनट के अंदर वो लंदन पहुँच गया। तो ऐसे फ्लिकरिंग हमेशा फ्लिकर होते रहता है। तो उसको कहा है चंचलम, क्योंकि एक जगह बैठता नहीं है। उसके बाद में प्रमाथि यानी पागल, जिसको बोलते हैं मैड, टर्बुलेंट, एजिटेटिंग, हमेशा जो उकसाता है हमको कोई ना कोई ऐसे कार्य करने के लिए। तो उसमें बताया प्रमाथि। उसके अंदर बलवत यानी बलवान, बहुत ही स्ट्रांग है। और बाद में लास्ट में बताते हैं दृढ़म, यानी एक बार अगर उसने कुछ ठान ली तो फिर वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनके अंदर मन के अंदर उसको कुछ आया तो उसने यहाँ तक कि उसने ये नहीं देखा कि इसने क्या कि किसके साथ में क्या संबंध है, और उन संबंधों का भी ना उल्लंघन करके उनकी हत्या कर दी। बहुत सारे उल्टे-सुल्टे काम हो जाते हैं क्योंकि वो दृढ़ है। वो एक बार सोच लेता है, ठान लेता है दिमाग के अंदर, तो वो उसको करके ही छोड़ता है। तो अर्जुन जब ये कहता है, अर्जुन सेज आई कैन कंट्रोल विंड, मैं जो वायु को उसको मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं प्रतिबंध लगा सकता हूँ, मगर मैं अपने मन के ऊपर नहीं लगा सकता। तो इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये सब मन की बातें क्यों चल रही हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि मन ही है आपका फ्रेंड भी है और आपका एनिमी भी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मन को कभी कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस वजह से इसको हम और आगे ले जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि भाई अनडाउटेडली, कृष्ण को कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी बात जो है सही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि मन जो है बड़ा चंचल है, बड़ा जो है प्रमाथी है, बड़ा बलवत है, बड़ा दृढ़ है, सब है, मगर इसको तुमको कंट्रोल कैसे करना है। और तुम तो कह रहे हो कि तुम वायु को कंट्रोल कर सकते हो, मगर तुम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कृष्ण जो है छठे अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं कि अगर तुम इसको सतत प्रयास करोगे, प्रयास है ना तो कौनते है, प्रयास करोगे, हमेशा प्रैक्टिस करो। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, यानी ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस के अंदर आपको आपके मन को बार-बार आप जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, उन आध्यात्मिक कार्यों के साथ में आपको जोड़ना है। तो आध्यात्मिक कार्य क्या कर रहे हैं? तो आप हमेशा ज़्यादातर हम जो हैं भक्त लोग जो भी भक्त बनने का प्रयास करते हैं और जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा चैंटिंग के ऊपर अपना ध्यान देते हैं। तो चैंटिंग के अंदर ध्यान देते हुए हमको मन को बार-बार उस जगह पे ले आना है, उस केंद्र पे लाना है कि हम अभी क्या बोल रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब जो बात बताई गई है इसके अंदर। तो उसके बाद में आगे क्या बोलते हैं कि अगर एक तो कृष्ण कहते हैं कि आपको आपके मन को बार-बार बुलाना है, प्रैक्टिस करना है, और दूसरा बोलते हैं डिटैचमेंट, यानी डिटैचमेंट किससे? भौतिक चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक कामनाओं से आपको मुक्त करना है, अपने आप को मुक्त करना है, और वो मन को जो है हमेशा आध्यात्मिक इच्छाओं के ऊपर ध्यान देना है। तो ये भौतिक कामनाएँ, तो मैंने पहले भी अपने क्लास में बताया था कि काम न आए, कामनाएँ वैसे बोलते हैं इच्छाओं को, मगर ये जो भौतिक होती है वो कभी भी काम नहीं आती हैं। इसके लिए इसको बोला गया है काम न आए। तो ये कामनाएँ हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं, और भगवान फिर छठे अध्याय के 36वें श्लोक में बहुत ही क्लियरली कहते हैं
फॉर वन हुज माइंड इज अनकंट्रोल, जिसका मन उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट वर्क, उनके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है। बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स, और जिसका मन जो है उसके कंट्रोल में है वो सही मार्ग पे चलता है, सही मार्ग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स इज एश्योर्ड ऑफ सक्सेस, यानी भगवान यहाँ पर क्लियरली बताते हैं कि आपको पहले आपके मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करने के बाद में उससे भी दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स, यानी आपको सही साधन, जो सही साधन का जो है आपको उपयोग करना है, तब आप यहाँ से, और जब आप ये दो चीजें आपके मन को कंट्रोल करोगे और आप सही साधनों का जो है आप उपयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, द सक्सेस इज अश्योर्ड, यानी आपको जो है जीत मिलेगी, आप जिस कार्य में लगे वो उसमें आपको जीत मिलेगी। दैट इज माय ओपिनियन, और भगवान ये कहते हैं ये भगवान का ओपिनियन है। अभी इससे बड़ा ओपिनियन किसका हो सकता है? तो अभी हम ये देखते हैं कि मीन्स दैट योगा प्रैक्टिशनर कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी इसका मतलब क्या होता है कि जो योगा, जितने भी योगा करते हैं, वो योगा करने वाले जब तक जो है कृष्ण भावनामृत नहीं है, तब तक उनको सक्सेस, उनको जीत या उनको उनके लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाते। तो आपको क्या करना है? तो यू हैव टू चैंट डेली, आपको रोज जप करना है, और आपने अपने गुरु को और आपने शिक्षा गुरु को या आपने जो आपके दीक्षा गुरु हैं उनको आपने वचन दिया है कि आप 16 मालाएं करेंगे, और 16 मालाएं भी ध्यान पूर्वक करेंगे। तो आपको क्या करना है? एक तो आपको चैंटिंग करनी है, चैंटिंग करने के बाद में आपको चैंटिंग कब करनी है? तो इट हैज टू बी ऑन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम। ऐसा नहीं कब हम कभी कर रहे हैं, कब हम रात को कर रहे हैं, कभी हम सुबह को। अगर आप रात को कर रहे हो सही है, सुबह को आपको समय नहीं मिलता तो आप रात को करते हो, रात को भी एक ही समय होना चाहिए। अगर आप सुबह को करते हो तो सुबह को भी जितना हो सके हमको ब्रह्म मुहूर्त में अपने जो राउंड्स खत्म करने हैं। मगर किसी कारणवश, किसी दूसरी सेवा के कारण अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमने उसका विभाजन किया हुआ होता है, जैसे बताते हैं 4 in the morning, 4 in the afternoon, 4 in the evening and 4 at night। तो ऐसे करके 16 मालाएं संपन्न होती है। उसी तरह अगर किसी ने 20 मालाओं का जो किया हुआ है, 20 मालाएं करते हैं, तो वो 5-5-5 कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वो सही समय पर, सूर्य भी सही समय पर उगता है और सही समय पर उसका अस्त होता है। तो ठीक उसी तरह हमको भी जो इस नेचर के साथ में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेचर भी भगवान स्वयं है, तो इस नेचर के साथ में हमको उसी समय पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के ऊपर हमको अपने माइंड को, अपने आप को उसको डिसिप्लिन करना है, उसको शिष्टता के अंदर लाना है। और इट विल नॉट बी स्टडी। अगर ऐसा नहीं करते तो कभी भी वो एक जगह पर नहीं ठहरता, वो हमेशा चंचल ही रहेगा। और बार बार जब भी अगर मन दूसरी जगह जाता है तो उसको भुला के, उसको खींच के अपने जो आपका देह है उसके अंदर आपको वापस लगाना। तो अभी यहाँ पर ये होता है कि अगर ये मन बार बार भटकता क्यों है, मन तो चंचल है तो मन भटकता क्यों? पहले तो हमने देख लिया उसको कि मन बड़ा चंचल है, उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि मन को कैसे कंट्रोल करना है या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। मगर प्रश्न अभी ये भी उठता है कि मन भटकता क्यों है? तो मन भटकता इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर 6 प्रकार के हमारे अंदर वेग हैं। तो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन्हीं वजहों से जो है वो इधर उधर भागते रहता है। काम की वजह से भागेगा, क्रोध की वजह से भागेगा। तो इन जो हमारे 6 जो हमारे अंदर जो विकार हैं, इन वजहों से जो होता है। तो अभी इन विकारों का कैसे मतलब उसको छोड़ें या इन विकारों को कैसे निकालें? तो जब इन विकारों को निकालने के लिए भी भगवत गीता के अंदर ही इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में 5.17 में तब बताया गया, भगवान बताते हैं कि किस तरह हमारे अंदर जो जितने भी हमारे अंदर कल्मश हैं, अभी कल्मश क्या है वो भी देखेंगे। कल्मश जो है हमारे अंदर, वो कल्मशों का कैसे हम सफाया कर सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर बताया गया है, तद बुद्धयास, बुद्धयास का मतलब होता है इंटेलिजेंस, तद बुद्धयास तद आत्मनस, आपके जो आपका आत्मनस का मतलब है यहाँ पर माइंड, आपका माइंड।
उसके बाद में तन्निष्ठा, यानी निष्ठा का मतलब था फेथ, एंड तत्परायणः, यानी आप किसी की शरणागति में रिफ्यूज ले रहे हो। तो गच्छन्ति अपूर्ण आवृतम नान निर्धूत कल्मषः, तो ये 6 प्रकार के कल्मश, कल्मश यानी गंदगियां हैं, बीमारियां हैं, या जो बोले कि अनवांटेड चीजें हैं हमारे मन के अंदर। तो हमारे मन के अंदर ये 6 प्रकार की ये जो कल्मश हैं, 6 प्रकार की गंदगी है, 6 प्रकार के हमारे गलत विचार हैं, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि अगर आप आपका फेथ, इसका मैंने एक्रोनिम बताया था कि फेथ, इंटेलिजेंस, उसके बाद में रिफ्यूज एंड माइंड। आपका फेथ, आपका जो निष्ठा है वो भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। उसके बाद में आपकी बुद्धि जो है भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। आपका जो शरणागति है वो भगवान के प्रति हो, और उसके बाद में आपका मन। तो ये चारों जब आप एक प्रकार से भगवान की सेवा में लगाओगे, चारों जो है आपके भगवान में लगाओगे, तो क्या होता है? तो इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं श्लोक का 5.17। तो इसमें क्या भगवान बताते हैं कि जब आप ऐसा करते हो, व्हेन वंस इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ एंड रिफ्यूज, ये चारों चीजें, फेथ, मैंने इसका एक्रोनिम बताया, फर्म, FIRM। तो फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड आर ऑल फिक्स्ड इन द सुप्रीम। भगवान श्री कृष्ण के अंदर अगर पूरी तरह से वो केंद्रित हैं, तो क्या होता है? देन वन बिकम्स फुल्ली क्लींस्ड ऑफ मिसगिविंग। तो जितनी भी आपके मन के अंदर कोई भी प्रकार के जो कल्मश हैं, इसमें निर्धूत कल्मशः, निर्धूत का मतलब होता है क्लीन करना, और कल्मश का मतलब है जो मिसगिविंग्स है, जो हमारे अंदर ये जो 6 प्रकार के जो विकार हैं। थ्रू कंप्लीट नॉलेज बिकम्स फुल्ली क्लींस्ड बाय ऑफ गिविंग थ्रू कंप्लीट नॉलेज। जब ये 4 प्रकार के जो हैं, फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड, ये जब आप पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के अंदर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के माध्यम से आप जो है भगवान की तरफ जा सकते हो। तो कृष्णा एक्सप्लेन्स व्हाट इज द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। इसी अध्याय के अंदर जो एंड के अंदर आता है, तो भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय के 47 श्लोक में बताते हैं कि आपको बेस्ट तो है, जितने भी जो योग बताए गए हैं इसके अंदर ज्ञान योग बताया गया है, ध्यान योग बताया गया है, अष्टांग योग बताया गया है, कर्म योग बताया गया है, ये सब सही है, सब सही है, ये बेस्ट है। मगर इसमें से भी बेस्ट क्या है? तो भगवान 6.47 के अंदर जो लास्ट वर्स है ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का, उसके अंदर भगवान बताते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है, जो अच्छे से भी अच्छा क्या है। तो भगवान यहाँ पर उसके अंदर बताए। तो इसको हमको समझने के लिए क्या चाहिए? अगर आपको समझ लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर लेना है, या कंप्यूटर के अंदर आपको भी बहुत ही अच्छे में अच्छा कंप्यूटर जो है उसको चलना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप मतलब किसके साथ में कांटेक्ट करोगे? तो जैसे अगर आपको मतलब जो अगर विंडोज का लेना है, तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? तो हम तो जितने भी वेंडर्स हैं इसको कांटेक्ट करते हैं, मगर अगर जिसको पूरी जानकारी है, जिसको पता है कि ये जो विंडोज कैसे है, किस तरह चल रहा है, और उसको वो जो मार्केट कर रहा है वो है बिल गेट्स, तो अगर हम उसको कांटेक्ट करेंगे तो वो हमको सही मार्ग बताएगा। वो हमको बताएगा कि विंडोज 98 सही है, विंडोज NT सही है, विंडोज उसके बाद 2010 है, 2013 है, तो इसमें बेस्ट क्या है वो सिर्फ जो है वही बता सकता है। तो ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं कि जितने भी योग हैं उन योगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो वो भगवान बताते हैं 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक 6.47 के अंदर बताते हैं कि सबसे बेस्ट में बेस्ट जो योग है वो कौन सा है। तो वो भगवान बताते हैं कि वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग कैसे? तो इट इज अ योगा ऑफ लव, योगा ऑफ डिवोशन, योगा ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड। ये 3 चीजें बताए गए। योगा ऑफ लव है, योगा ऑफ डिवोशन है, यानी हमको भक्ति करनी है, योगा ऑफ सर्विस भगवान की सेवा करनी है। तो जब उसके बारे में आता है तो ध्यान योग और अष्टांग योग, तो ये सब जिम्नास्टिक्स कौन कर सकता है? क्या आज हम बैठ के शीर्षासन कर सकते हैं? आज हम बैठ के वक्रासन कर सकते हैं? क्या हम आज बैठ के? इसके लिए हमको पूरे शरीर को मरोड़ना पड़ेगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो नन ऑफ us can do that। आज के मतलब ये हम नहीं कर सकते। उसके बाद व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान योग।
ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द नॉलेज, भगवान को समझने का प्रयास करेंगे ज्ञान के ऊपर। तो ये भी कितना, आप कितने शास्त्र पढ़ोगे, कितना जो है मतलब अध्ययन करोगे, तो उसका जो सार है भगवत गीता के अंदर दिया गया। तो भगवत गीता का अगर हम अध्ययन करेंगे ध्यान पूर्वक, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और सही ज्ञान बढ़ेगा। जो जो सही माने में ज्ञान क्या है? सही माने में ज्ञान वही है कि हमको भगवान श्री कृष्ण के धाम में वापस जाना है और इस भव सागर से निकलना है। उसके बाद में आता है कर्मयोग। तो ये कर्मयोग के अंदर क्या करना है? कर्मयोग के अंदर भी आप कर सकते हैं, सही है, गलत नहीं है। जितने भी योग बताए गए हैं भगवत गीता के अंदर वो सब सही हैं, और सही में से जो अच्छे हैं और सब उनमें से अच्छा कौन सा है? तो भक्ति योग जैसे बताएगा 6.47। तो कर्मयोग क्या है? तो कर्मयोग करने के लिए पहले तो आपको परफेक्ट ब्राह्मण बनना पड़ेगा। उसके बाद में या तो परफेक्ट आपको क्षत्रिय बनना पड़ेगा, परफेक्ट वैश्य बनना पड़ेगा, परफेक्ट शूद्र बनना पड़ेगा। और हमने तो देखा था कि श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है कि भीष्मदेव बताते हैं कि 8 क्वालिटीज हैं, वो 8 क्वालिटीज पूर्ण रूप से करोगे और उसके बाद में जो 9वीं क्वालिटी है वो 8 जब क्वालिटीज करोगे तो 9वीं क्वालिटी आपके अंदर आएगी। और जब वो 9वीं क्वालिटी आएगी तब आप सही माने में सभ्य जीव हो, यानी सभ्य मनुष्य हो। अगर आप मतलब उन जो 9 जो क्वालिटीज हैं उनको पूर्ण रूप से आपके जीवन में उतारते हो और आप वो पूरी 9 क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तब आप सही माने में सभ्य जीव हो। हम तो अभी तो सिविलाइज्ड, और हम लोग सिविलाइज्ड भी नहीं है। सभ्य का मतलब होता है सिविलाइज्ड, तो हम तो अभी सिविलाइज्ड भी नहीं है। तो ये हम कहाँ से सही माने में ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बन सकते हैं? तो जो हमारी ड्यूटीज हैं, पहले तो हमको ब्राह्मण की या क्षत्रिय की या वैश्य की या शूद्र की हमको जो सर्विस जो ड्यूटीज करनी पड़ेगी, और उसके बाद में उसमें उसका जो फ्रूट मिलता है, वो कार्य करने से जो हमको लाभ मिलता है, वो हमको भगवान को अर्पण करना है। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें? भक्ति योग के अंदर। हम अपने परिवार के साथ में बैठकर भक्ति कर सकते हैं। कर्मयोग भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे, जितना भी हम जो भी हमको मिलता है वो हम भगवान को ऑफर करेंगे। तो इसी तरह यू कैन रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो आपका ज्ञान मतलब योग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। किसमें? भक्ति के अंदर। पहले जैसे बताया कि आप फैमिली के साथ में रहोगे तो आप भक्ति योग कर रहे हो और भक्ति के मार्ग चल रहे हो, तो इसके अंदर ज्ञान योग कैसे आएगा? तो शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें तो सही इंटेलिजेंस, जो सही माने में ज्ञान आपको मिलेगा, तो वो होगा आपका भक्ति, उसको वो आपका होगा ज्ञान योग। उसके बाद में यू हैव टू सिट डाउन, आपको बैठना है, नीचे जमीन पे बैठे और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, और भगवान का नाम लेते हुए आप भगवान के जो जितनी भी भगवान की लीला हैं, भगवान के कार्य हैं, उनके ऊपर आप ध्यान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ध्यान योग हो जाएगा। ध्यान योग भी बैठ गया और साथ में आपने स्थिर बैठे हो, ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, तो इसके अंदर आपका जो पहले बताया गया है कि मतलब ध्यान योग भी हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी प्रकार से आप अष्टांग योग भी कर सकते हो। आप ध्यान पूर्वक बैठे हो, ध्यान से सुन रहे हो। दिस ऑल यू कैन डू विद द फैमिली। आप भगवान के का जो है ध्यान कर सकते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ में भी रह सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको संसार को छोड़ के बाहर चला जाना है। तो भक्ति योग इज द कंप्लीट पैकेज, उसके अंदर बाकी के सब आ गए। तो अगर आपने जो जैसे कहते हैं कि आपने कंप्लीट ऑफिस ले लिया माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके अंदर आपको सब आ जाएगा, वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, सब उसके अंदर आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर आपने भक्ति योग को अपनाया, जो इस कलयुग का आधार है, कलयुग के अंदर हम सिर्फ भक्ति योग कर सकते हैं। ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ये करना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर भक्ति योग इज मोस्ट पावरफुल एंड easiest in this Kali Yuga, and this is Krishna's opinion. It is not my opinion, it is Krishna's opinion कि हमको क्या करना है। तो in the end हम मतलब ये हमने सब सुना। तो ये यहाँ पर भी जो भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एंड में क्या लिखते हैं। सो अगर हम देखेंगे, बट इन द भगवद गीता द लॉर्ड हिमसेल्फ डिक्लेयर्स दैट he is a source of impersonal Brahman and therefore he, the personality of Godhead, is the ultimate cause of all causes। और हम ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं और हमको ये भी पता है कि सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण कौन है? ये सब कारणों के कारण है। तो जो भी फिलोसॉफीज बताई गई हैं इस
के अंदर जैमिनी की, उसके बाद में अष्टावक्र की, उसके बाद में दूसरे गौतम की, कन्नड़ की, इन सभी को सुपरसीड कर जाता है, इससे सबसे ऊपर आता है। वो कौन सा है? तो वो बता रहे हैं भक्ति योग करें, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ। तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी है तो आप प्लीज ऐड कीजिए इस माध्यम से, ताकि मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़े और मैं उसको अपने साथ ले जा सकूं। तो प्लीज ऐड इफ यू हैव एनी पॉइंट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। बहुत अच्छा आपने माइंड का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है अपना स्पिरिचुअल लाइफ में, वो आपने बताया। जैसे माइंड जो है डिफिकल्ट भी है, और जैसे अर्जुन भी बोलता है कि मित्र भी है शत्रु भी है, तो माइंड के कंट्रोल से ही हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छे पॉइंट्स थे ब्रो, सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा उद्धव प्रभु, दंडवत एक्चुअली प्रभु। आज कोइंसिडेंस था, जब सुबह उठा तो ये उदरेद आत्मनाम के ऊपर ही पता नहीं वो लाइक माइंड के ऊपर ही सोच रहा था, एंड आज का श्लोका भी निकला। और तो आपने बहुत अच्छी तरह से ये किया। तो अगर देखेंगे तो माइंड की वजह से पूरा ये हमारा एग्जिस्टेंस चल रहा है, एंड अगर इसको जैसे आपने कहा इफ वी कैन मेक इट अवर फ्रेंड, तो यही हमको यहाँ से लेके जाएगा, नहीं तो यहीं पे रखेगा। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट ये है क्या माइंड का जो हमारे जीवन में रोल है। तो आइदर इट कैन कीप अस हियर और टेक अस बैक टू गॉड हेड। बट जितना हम लोग भक्तों के साथ रहेंगे उतना इस माइंड को एक्चुअली एंगेज रखना ही अपने लिए सबसे अच्छा है प्रभु। एंड जैसे गोपीनाथ प्रभु ने कहा, इतने सारे अच्छे पॉइंट थे, तो विल ट्राई टू उसको अपने जीवन में विल ट्राई टू उतारेंगे, और माइंड को जितना हो सके लॉर्ड के ही चरणों में रखेंगे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हाँ समीर प्रभु, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास, सुपर हरे क्लास। कृष्णा। आपने जो भक्ति योग का जो बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, वो बहुत अच्छा लगा। एक मतलब प्रॉपर एग्जांपल देते। और प्रभु जी आपने जो माइंड का जो बोला ना, वो सीरियसली मतलब कितना पावरफुल है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि मतलब वो अपना शत्रु है मित्र भी है। इफ माइंड इज कंट्रोलिंग आवर इंटेलिजेंस तो वो शत्रु हो गया। But if mind is following our intelligence and that intelligence is nurtured by the shastras, then वो mind अपना मित्र हो गया। तो प्रभु जी बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर गिविंग द प्रॉपर वर्ड्स। जो आपने बताया कि अगर हम माइंड को फॉलो करते देन इज एनिमी, एंड माइंड जैसे है, हम लोग जो माइंड को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट प्रभु। और उस श्लोक के अंदर भी जैसे ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण क्लियरली कहते हैं कि खाली सिर्फ मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को कंट्रोल करने के बाद में आपको सही साधन, ये क्या बोलते हैं, बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड एंड हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मीन्स। तो ये अप्रोप्रिएट मीन्स के अंदर ABCD आ जाता है। यानी अगर आपका मन कंट्रोल भी है, पहले तो आपको मन कंट्रोल करने के लिए भी ABCD चाहिए, और बाद में आपको मन कंट्रोल होने के बाद में भी ABCD चाहिए, और उसके बाद में आपको भगवान तक जाने के लिए भी ABCD चाहिए। तो हम सब जानते हैं ABCD क्या है। एसोसिएशन, बुक्स, देन यू हैव चैंटिंग एंड यू हैव डाइट। तो ये सब चीजें जो है ABCD पहले भी चाहिए, then the mind will be controlled. Then once the mind is controlled, again you need ABCD. अगेन आपको आगे बढ़ने के लिए भी अप्रोप्रिएट मीन्स क्या है, तो वो भी आपकी ABCD है। एसोसिएशन, उसके बाद में जो बुक्स, श्रील प्रभुपाद का ज्ञान प्राप्त करना है, और उसके बाद में आपको चैंटिंग करनी है, एंड क्लियर चैंटिंग करनी है, एंड देन यू हैव टू फॉलो द डाइट विच इज प्रसादम। तो ये
और उसके बाद में अगर आपने मतलब भक्तों का संग भी हो गया, आप सही मार्ग पे चल रहे हो, उसके बाद में भी आगे चलने के बाद में भी आपको वो एंड तक ये एबीसीडी करनी है। नहीं तो आपकी जो गाड़ी है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड ड्राइव, आपकी गाड़ी ड्राइव नहीं चलेगी। आपकी गाड़ी ड्राइव नहीं होगी तो ये उधर जो आपकी आध्यात्मिक जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो एक्सीलेटर भी अगर आपने छोड़ दिया तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, वो तो आपको पता है। उसके बाद में आप आपकी ब्रेक फेल है तो गाड़ी इधर उधर जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और क्लच के बगैर आप गियर चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद में अगर ये सब नहीं चलेंगे तो आप ड्राइव कैसे करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट मीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम यू हैव टू कंट्रोल द माइंड। इसके लिए श्लोक के अंदर भी और तात्पर्य के अंदर भी श्रील प्रभुपाद ने पहले अप्रोप्रिएट मीन्स पहले नहीं लिखा है। वहां पर उन्होंने लिखा है कि इसका ट्रांसलेशन कि whose mind is controlled, first control of mind is important and then the appropriate means are required, so that and that is the opinion of whom? भगवान स्वयं का ओपिनियन है, भगवान का खुद का ओपिनियन है कि तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक जस्ट ये था क्वेश्चन था प्रभु। प्रभु जैसे मेरा एक्सपीरियंस द मोर वी ट्राई टू कंट्रोल ना प्रभु माइंड को, वो उतना इट बिकम्स मोर ऑब्स्टिनेट, मतलब ज्यादा उसको ये होता है। सो प्रभु कैन वी मतलब एंगेज हम, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंडीशन सोल फॉर कंट्रोल से ज्यादा एंगेजमेंट विल बी गुड प्रभु, क्योंकि जितना ट्राई करते कि ऐसा नहीं, छोटे बच्चे को जितना आप उसको ना बोलेंगे उतना वो चिड़चिड़ा होता है, और उसी बच्चे को अगर आप डाइवर्ट करके एंगेजमेंट कुछ और देंगे तो वो थोड़ा संभल जाता है। तो उसी तरह से प्रभु फॉर अस कंडीशन सोल इज एंगेजमेंट, मतलब कंट्रोल करेगा तो माइंड और ही बिकम्स ऑब्स्टिनेट, मतलब आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोल्ड, और उसी को अगर एंगेज करेंगे। जस्ट ये सवाल था प्रभु, व्हाट इज डेफिनेटली प्रभु, आपका सवाल नहीं है, आपने तो करेक्शन कर दिया, सही है। माइंड इज नॉट टू बी कंट्रोल, माइंड हैज टू बी डाइवर्टेड। वो सही है। डाउटेल जो हम हमेशा लेक्चर्स के अंदर सुनते हैं कि हमको ये मन को कंट्रोल करने का एक मार्ग यही है। इसको जो है मन को कंट्रोल करने का तरीका एक यही है। वो कंट्रोल भी कैसे है? यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बिकॉज जितना आप उसको दबाने का प्रयास करोगे, जितना उसको आप प्रेशराइज करोगे, जितना तो स्प्रिंग की तरह वापस से बाउंस बैक होगा। तो हमको जितना दबाओगे वो वापस आएगा, वो फिल फोर्स के साथ में आएगा, और फिर जो आपके जितने भी आपके जो आपने नियम बना के रखे हैं सब इधर उधर हो जाएंगे। तो यू हैव टू एंगेज इन डिफरेंट मैनर, उसको दूसरी जगह पे ले आना है, सो दैट हर चीज के अंदर, जैसे जो भक्ति योग के अंदर जैसे पता है कि सब चीजें एक भक्ति योग के अंदर आ गई, तो वी हैव टू मॉड्यूलेट इन सच अ मैनर कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी भौतिक इच्छाओं को हम आध्यात्मिक इच्छाएं बनाएं। अगर हमको जो है जैसे नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द नॉवेल्स में क्या है, पूरी स्टोरीज हैं, स्टोरीज के अंदर ये है वो है, वो सब जो है एक तरह से क्या बोलते हैं कि इमोशंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। वही इमोशंस अगर हम देखेंगे तो रियल इमोशंस वी कैन गेट इट इन भागवतम। देयर आर सो मेनी लीलास मेंशन अबाउट द डिवोटीज एंड अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णा। तो वो अगर हम वही आनंद अगर हम जो नॉवल को छोड़कर अगर हम भागवतम के अंदर जो जितनी अंदर लीलाएं हैं उनको अगर पढ़ेंगे और उसके अंदर से हम उसका रसास्वादन करेंगे, हम उसका मतलब उस नेक्टर को पिएंगे, तो that is what is called dovetailing. Just changing, you have to change the gear into the top gear instead of going on the lower gear. तो टॉप गियर के अंदर जाएंगे, तो टॉप गियर के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो इट इज एंड व्हाट इज द टॉप गियर, वो हमको मालूम है कि टॉप गियर क्या है। हमारे भागवतम के अंदर जितनी सारी लीलाओं के बारे में बताया गया, भगवान का ज्ञान करना, चैंटिंग करना, ये तो वी हैव टू जस्ट चेंज दैट। टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए हम लोग बैठ के मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलते हैं, वेरी ट्रू, मगर एट द सेम टाइम उसी मोबाइल के अंदर हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं, हमारा वहां पर भी टाइम पास होगा। हम जो है जैसे हमारे डिवोटीज लोगों ने कितने अच्छी तरह से किया है कि अगर पहले अंताक्षरी खेलते थे तो पिक्चरों के गाने पे अंताक्षरी करते थे।
आजकल जितने भी बच्चे हैं वो बोलते हैं जो दृढ़ भक्ति के अंदर इतने सारे बच्चे हैं वो अंताक्षरी खेलते हैं, तो बोलते हैं नहीं हम लोग भगवत गीता के जो श्लोका हैं उसके ऊपर अंताक्षरी खेलेंगे। तो दिस इज अ वे ऑफ डाउट टेलिंग। सेम थिंग है जब अच्छा वो पिक्चरों को गाने को याद करने के लिए पिक्चरों के गाने सुनने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह वो पिक्चरों भागवतम के या भगवत गीता के श्लोकों को याद करने के लिए हमको वो सुनने पड़ेंगे, तो वहां पर हियरिंग हमारा काम आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमको सिर्फ उसको मॉड्यूलेट करना है। एक जो एम है, जो जहां पर हमारा मन जो है हमको एनिमी बना रहा है, उसी को चेंज करके हमको भगवान की तरफ, यानी जहां पर हमको हमारा मन हमको फ्रेंड, हमारे लिए फ्रेंड बनता है, उस तरफ ले जाना। इट्स सिंपल। हरे कृष्णा। गोपी मन प्रभु हैज टू ऐड समथिंग। हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रभु, ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला है कि क्या माइंड को सिर्फ कंट्रोल करना है। तो भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है इन सेकंड चैप्टर श्लोका नंबर 61, वहां पे भगवान बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो भगवान क्या बोलते हैं, ना सिर्फ मन को कंट्रोल करना है, तानि सर्वाणि संयम, ना सिर्फ संयम रखना है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है युक्त आसीत मत्परः, मुझ में अपना माइंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी। तो भगवान भी ये सॉल्यूशन देते हैं कि मतलब पता है कि अगर सिर्फ माइंड को कंट्रोल करेंगे, तो जैसे सूरज माधव ने बोला कि बच्चा कोई मस्ती कर रहा है तो उसको बोलेंगे चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ, तो कितना दिन, कितना टाइम हो गया, मैं भी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1 दिन, लेकिन फिर वो उसका नेचर है, वो शुरू हो जाएगा फिर से। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं को एंगेज करो, तो वैसे अपना माइंड भी वैसे ही है। तो भगवान भी यही बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, नॉट ओनली कंट्रोल बट एंगेज योर माइंड। और वो कैसे करना है, दैट आल्सो लॉर्ड वेरी ब्यूटीफुली ही टेल्स इन श्लोका नंबर 59 कि जो एंगेज क्यों होता है, ये मतलब ये क्यों ऐसा मिसक्रिएंट कर जैसा रहता है, क्योंकि उसको जो है लोअर टेस्ट है, तो वो टेस्ट हटा के उसको हायर टेस्ट पे उसको फोकस, रसोवर्जम रसोअप्यस्य, उसका जो टेस्ट है वो गया नहीं है उसका, और ही इज ऑलवेज हैंकरिंग फॉर दैट काइंड ऑफ जो भी जो उसका मिसक्रिएंट एक्टिविटीज है उसका कॉज होता है। तो वो हाथ से मन हटाना है और उसको हाई टेस्ट में उसको अपना जो है धीरे धीरे परिवर्तित करना, और फिर मेन चीज भगवान में अपने को वो करते हुए मन, भगवान में मन लगाना है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जैसे इन अवर लाइफ हम लोग भी कितना पहले हम लोग कितना टाइम पास करते थे, जैसे प्रभु ने बोला, बट नाउ हमारे पास टाइम कम पड़ता है, हम लोग के पास, हम लोग के इतना सेवा रहता है कि वी डोंट हैव टाइम। कोई बोलता है यार एक चलो यार थोड़ा इधर एक ऑफिस का पार्टी चलते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ। हम लोग ऐसा कितना मटेरियल एक्टिविटीज हम लोग स्किप आउट कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑलरेडी अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा। सो वी हैव स्लोली मूव्ड फ्रॉम दैट फेस ऑफ लाइफ टू आज जहाँ पे है, एंड स्टिल ये नहीं, दिस इज नॉट द हाईएस्ट बट स्टिल वी हैव टू गो अहेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हम लोग को ध्यान रखें, बट प्रोसेस भगवान अच्छी तरह से दे रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for adding this. So even like today's shloka, when we were reading that, मैंने बताया 5.17, उसके अंदर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि your faith, intelligence, refuge, and mind are all fixed in the Supreme. And that means it's clearly indicating that once you, जब तब तक आपके हृदय के अंदर जितने भी मिसगिविंग्स हैं, जितने भी आपके अंदर अनर्थास हैं, वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ये आप चार जो है, आपका फेथ, आपका इंटेलिजेंस, आपका माइंड एंड आपका रिफ्यूज, ये जब तक ये चार चीजें पूर्ण रूप से भगवान के अंदर जो है केंद्रित नहीं है, तब तक आपके हृदय के अंदर जितने भी कल्मश हैं वो दूर नहीं होंगे। तो वहां पर भी भगवान यही बता रहे हैं कि आपका जो मन है, इट हैज टू बी स्टेशन एंड इट हैज टू बी फोकस्ड ऑन सुप्रीम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग दैट, प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Hare Krishna. Thank you for raising the question or correcting that it's not to be controlled, it is to be dovetailed. Hare Krishna.